Hello everyone, this is Dr. Vandana Oja, neurophysiotherapist. Today we are going to discuss about a very common condition of diabetes, that is diabetic neuropathy. Friends, जैसे कि आप जानते हैं, diabetes has become a growing epidemic of the world. आज 537 से 590 million people are suffering from diabetes. It could be said that around 1 in every 9 individuals is suffering from diabetes. So it has become so common, so serious. Although it is common, but it is at the same time largely goes unnoticed and undiagnosed, which is very much serious. जैसे डायबिटीज है वैसे की वैसे ही डायबिटिक न्यूरोपैथी है. डायबिटिक न्यूरोपैथी भी एक साइलेंट किलर है. द नर्व्स दे गेट डैमेज, दे गेट स्लो वर्किंग हो जाती है नर्व्स की, और ये सब हो जाता है without even noticing. और हम know that currently the worldwide population of diabetics is around 537 to 590 million. Adult population age range from 20 to 79 years. This is approximately 10.5% of the global adult population. एक बहुत ही ज़्यादा value है. It has been predicted by WHO that this value it is keep on growing and increasing on a rapid rise. According to WHO, 1980 में जो diabetic population was around 108 million people, और वो बढ़ करके हो गई है 2014 में तकरीबन 422 million people. So this much, these many people are suffering from diabetes, more so in low and middle income countries than in the high income countries. So ये जो बीमारी है वो developing nations के लिए बढ़ती जा रही है. According to International Diabetic Federation, this number is expected to increase by 643 million by 2030. In India, the currently number is around 101 million people plus 25 million people having pre-diabetes. So this is a serious concern for our country because already जो patients हैं उनको भी diagnosis नहीं हुआ होता है, और there are lot of people which are undiagnosed, अभी भी जिनका diagnosis clear नहीं है, और they are at risk of diabetes and its complications. So it's a serious concern. 50% of the individuals with diabetes in India are unaware of their condition. Similar to diabetes, diabetic neuropathy जो कि उसका एक complication है, वो भी एक silent killer है. क्यों? क्योंकि वो जब nerves affect होती हैं diabetes में, it is a slow and it is a quiet process. It does not give any warning signs. Absolutely no warning signs until and unless the damage has become so severe कि वो irreversible stage तक आ जाता है. तो ये एक बहुत ही concerning issue है diabetic neuropathy का, which has to be faced, which has to be encountered, and which has to be fighted back. Neuropathy in India is approximately 18 to 51%. There is a large variation in this prevalence, mainly because of the umbrella term which we are using in diabetic neuropathy. Diabetic neuropathy एक umbrella term है क्योंकि उसमें बहुत सारे types of neuropathies included हैं. Diabetes affects the nerves differently in different persons. So it varies from one diabetic person to another, and that is why the prevalence rate is so much varied. On the other hand, definitely diabetes affects the nerves. जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अगर ब्लड शुगर लेवल्स हाई रहती हैं डायबिटिक पर्सन्स में, तो इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट द नर्व्स एंड द एनवायरनमेंट सराउंडिंग द नर्व्स. इट एक्ट्स एज एसिड ऑन द नर्व्स, एंड ग्रेजुअली जो नर्व्स की फंक्शनिंग होती है, उनकी जो कंडक्शन प्रॉपर्टी होती है नर्व्स की, वो धीरे धीरे कम होने लगती है, एंड एज अ रिजल्ट दिस स्टार्ट सेंडिंग द इम्पल्सेस स्लोली. और यही वजह है कि जब अगर डायबिटिक पर्सन्स को कभी चोट लग जाती है या फुट इंजरी होती है, तो दे आर नॉट अवेयर समटाइम्स अबाउट द इंजरी, एंड दे डू नॉट टेक इमीडिएट एक्शंस. दे डू नॉट फील पेन बिकॉज जो पेन सेंसेशंस होते हैं वो कैरी करने वाली नर्व्स वो कम काम कर रही हैं, और इसी वजह से उनका जो
प्रोटेक्टिव फंक्शन है, प्रोटेक्टिव एटीट्यूड टूवर्ड्स द इंजरी है, वो कम होता है एंड इट लीड्स टू प्रोलॉन्ग्ड हीलिंग नहीं होता है जल्दी से, तो वुंड हीलिंग में टाइम भी लगता है, अल्सर्स फॉर्म हो सकते हैं और ये अल्सर्स नॉन हीलिंग टाइप में कन्वर्ट हो सकते हैं, जो कि रिपीटेडली इंजरी की वजह से वो नॉन हीलिंग अल्सर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. और समटाइम्स these ulcers, due to these ulcers, there is a possibility of doing amputation also. So that is the worst case कि इस हद तक भी जा सकते हैं न्यूरोपैथी के पेशेंट्स कि उनको एम्पुटेशन करवाना पड़े. तो ये बहुत ही एक सीरियस कंडीशन है. एट द सेम टाइम अगर हमें न्यूरोपैथी के बारे में पहले से पता चल जाता है ड्यूरिंग इट्स रिवर्सिबल फेज, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उस फेज में हम इस कॉन्सिक्वेंसेस को होने से बचा सकते हैं. हम आ, मैंने ड्यूरिंग माय रिसर्च स्टडी मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे कि जिनको जो कि एंड स्टेज पे होते हैं, और इन इन लोगों को देख करके मुझे हेल्पलेस फील होता था कि इनको अगर थोड़ा सा समय मिलता, थोड़ा जल्दी पता चलता, तो शायद कोई रिवर्सिबल हो सकता था डैमेज उनको. बट अफसोस they come at a later stage because of their ignorance or because of delayed presentation of the cases also. लेकिन ये है कि अगर हम लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं उनकी कंडीशन के बारे में, तो डेफिनेटली दे विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स एंड वो प्रोटेक्टिव स्टेप्स टाइम पे ले सकते हैं. Yes, the timely diagnosis is very much important in diabetic neuropathy, क्योंकि एक बार जो वो टाइम चला जाता है रिवर्सिबल फेज का, फिर आ जाता है इरिवर्सिबल फेज, जो कि जिसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं. सो द आइडियम प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर यहाँ पे भी लागू पड़ता है और पूरी तरह से लागू पड़ता है डेफिनेटली. और इसीलिए this caused me inspired to to make a video so that it would be a alert like और alarm like होगा लोगों के लिए जो डायबिटीज से सफ़र कर रहे हैं, so that they do not go to the end stage of diabetic complication, डायबिटिक न्यूरोपैथी के एंड स्टेज तक ना पहुँचे, उसके लिए ये वीडियो है, so that they become aware of their condition timely और अच्छे से उनकी जो प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं वो ले सके इसके लिए. नेक्स्ट आते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी के प्रोसेस में. तो क्या होता है एग्जैक्टली डायबिटीज़ में कि जो नर्व्स इतनी ज़्यादा डैमेज हो जाती है. सी व्हेन द ब्लड शुगर लेवल्स रिमेन हाई फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इवेंचुअली क्या होता है कि जो नर्व्स के सराउंडिंग का एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब होने लगता है. देयर आर रिलीज ऑफ वेरियस एंजाइम्स, माइक्रो एंजाइम्स एज वेल एज दी न्यूरोकेमिकल्स, और ये सारे कुछ एंजाइम्स की एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो कुछ एंजाइम्स जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा देते हैं एनवायरनमेंट का. तो इस हिसाब से पूरा जो है नर्व्स के माइक्रो एनवायरनमेंट का पूरा डिस्टर्बेंस हो जाता है. बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं, न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होते हैं, जो कि नर्व सेल्स मतलब कि जो श्वान सेल्स हैं उनको एपोप्टोसिस करते हैं या डेथ करा देते हैं. तो उसकी वजह से जो नर्व्स की एफिशिएंसी है वो इवेंचुअली कम होने लगती है. एट द सेम टाइम जब वो माइक्रो एनवायरनमेंट नर्व्स को नहीं मिलता है, हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, तो दे अंडरगो अ डिजेनरेटिव प्रोसेस. और ऑल्सो अगर डिजेनरेशन हो चुका है और रीजेनरेशन होने वाला है, तो रीजेनरेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है. मतलब कि जो नर्व्स की रिकवरी का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है एज कम्पेयर टू अ मेटाबॉलिकली हेल्दी नॉर्मल इंडिविजुअल. सो बिकॉज नर्व्स को एडिक्वेट हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से जो उसका रिकवरी प्रोसेस है वो डिलेड हो जाता है, और कभी कभार जो रीजनरेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं भी होता है. तो एज अ रिजल्ट जो सेंसरी डेफिसिट्स हो जाते हैं पेशेंट को, मतलब सेंसेशंस कम हो जाते हैं, कम फील करने लगते हैं, तो वो पूरा रिकवर नहीं होता है.
पूरे न्यूरोपैथी के प्रोसेस को हम दो फेजेस में बांट सकते हैं। फेज 1 होगा जो कि अर्ली एंड मेटाबॉलिक डिसफंक्शन का फेज होता है, विच इज अ रिवर्सिबल फेज। इस फेज में मेनली जो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, हार्मफुल न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होते हैं एंड मेटाबॉलिकली उसको इम्बैलेंस करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा देते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट का। As a result, the nerves stop functioning properly. There occurs a functional deficit in the nerves, and which can be easily recorded in the nerve conduction test. And secondly, इस फेज तक अगर जब नर्व डैमेज होती है तो दैट इज इजीली रिवर्सिबल with metabolic corrections and appropriate medicines. इस फेज के बाद जो भी नर्व डैमेज होता है दैट बिकम्स रिवर्सिबल, सॉरी इरिवर्सिबल, दैट बिकम्स इरिवर्सिबल। सेकेंड जो फेज है वो है लेट एंड इरिवर्सिबल स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द नर्व्स। इसमें मेनली जो नर्व्स होती है उनकी स्ट्रक्चरल चेंजेस आने अपीयर होने लगते हैं, जैसे कि एक्सोनल एट्रोफी होना, एक्सोनल डिजेनरेशन होना, डाइंग बैक न्यूरोपैथी होना। तो इन सब चेंजेस की वजह से जो उसका रीजेनरेशन प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है या फिर वो इनकम्प्लीट रहता है। एंड ऑल्सो at this phase the neuropathy is irreversible. You cannot reverse or the neuropathy to back to normal from this stage. Yes. It is similar to जैसे कि पॉटर पॉट्स बनाता है, ठीक है, तो वो जैसे पॉट्स बनाते हैं अगर गीली है मिट्टी तो वो पॉट्स का शेप इजीली चेंज कर सकते हैं, बट एट वंस अगर पॉट्स ड्राई हो जाते हैं, मिट्टी ड्राई हो जाती है तो फिर उसका शेप चेंज करना डिफिकल्ट हो जाता है या फिर इम्पॉसिबल ही कह सकते हैं हम। तो उसी तरीके से हमारी नर्व्स भी काम करती हैं कि एट सम फेज तक हम उसको रिवर्सिबल कर सकते हैं और उस फेज के बाद में उस कंडीशन हमारे हाथ से निकल जाती है। अब बात करते हैं कॉमन सिम्टम्स की डायबिटिक न्यूरोपैथी में। कैसे पता चले कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक न्यूरोपैथी। एक बार फिर रिपीट करती हूँ कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए है एज वेल एज आपके सराउंडिंग में जो भी डायबिटिक इंडिविजुअल्स हैं जिनकी आप केयर करते हो उनके लिए है। सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड। यस, तो हम बात कर रहे थे सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स ऑफ न्यूरोपैथी। तो फर्स्ट कॉमन सिम्टम जो बहुत ही कॉमनली देखा गया है वो है नंबनेस का। नंबनेस मतलब मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स दे फील कि उनके फीट और टोज नम हो गए हैं। दे आर नॉट फीलिंग द सेंसेशंस ऑफ द फ्लोर टचिंग द फीट, और जो सोल उनका टच कर रहा है ग्राउंड को वो उनको फील नहीं होता है। दे आर नॉट एबल टू फील द पेन सेंसेशंस, और ठंडा गर्म का उनको सेंसेशन कम हो जाता है। दिस इज हार्मफुल बिकॉज अगर पेन नहीं होगा तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म एलिसिट नहीं होगा, एज अ रिजल्ट जो रिपीटेडली इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इसकी वजह से एक नॉन हीलिंग अल्सर भी प्रोड्यूस हो सकता है, जो कि हमने आगे डिस्कस किया कि ये बहुत ही ग्रेव कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक न्यूरोपैथी का। सो सेकंड इज ऑफ टिंगलिंग। टिंगलिंग मतलब जैसे कि हैंड स्क्रॉल करती है फीट और लेग्स पे, वैसे पेशेंट को फीलिंग आती है जैसे चींटियां चलती है फीट और लेग्स पे, एंड दिस कुड बी एन अर्ली साइन ऑफ न्यूरोपैथी। दिस बर्निंग सेंसेशन इन फीट, इसमें पेशेंट को ऐसा फील होता है जैसे फीट में बर्न, जलन जैसा होता है, और ये मोस्टली नाइट में ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। दिस कुड बी कॉल्ड एज अ पेनफुल न्यूरोपैथी। एट द सेम टाइम ये फर्दर इवॉल्व होकर के रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी कॉज कर सकती है, जिसमें पेशेंट को रात को नींद नहीं आती बिकॉज ऑफ इंटेंस पेन, एंड इवन टचिंग ऑफ द ब्लैंकेट कॉजेज पेनफुल सेंसेशन, जिसको एलोडाइनिया भी कहते हैं। नेक्स्ट इज शार्प इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन। इसमें पेशेंट को ऐसा फील होता है कि जैसे किसी ने सुई चुबाई हो या चाकू चुबा दिया हो, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज शार्प स्टैबिंग पेन। स्टैबिंग टाइप ऑफ पेन होता है जिसमें चाकू भोंकने जैसा या सुई भोंकने जैसा पेन होने लगता है फीट और लेग्स में। एंड इट उसका एक दूसरा टाइप भी है करंट लाइक सेंसेशन, जिसमें करंट, इलेक्ट्रिक करंट जैसा उनको शॉक लाइक सेंसेशंस होते हैं। इंक्रीज सेंसिटिविटी, इसका मतलब है
कि पेशेंट को इवन लाइट टच से भी पेनफुल या डिस्कम्फर्टनेस हो सकती है। एंड यूजुअली सच पेशेंट्स जो हैं दे अवॉइड वेयरिंग सॉक्स और दे अवॉइड इवन जो चादर होती है वो उसको ओढ़ना भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसकी टच से भी उनको पेन सेंसेशन क्रिएट होने लगता है और इतनी स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाती है। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ बैलेंस एंड अनस्टेडी गेट। इसमें पेशेंट को फ्रिक्वेंट ट्रिपिंग होती है, मतलब बार बार ठोकर लगनी, बार बार गिरना, फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉल्स इंक्रीज हो जाती है। एट द सेम टाइम इम्बैलेंस की फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज ऑफ विच फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉल ऑल्सो इंक्रीजेस। एट द सेम टाइम उनको अनस्टेडी गेट हो जाता है, दैट मीन्स कि उनका जो वॉकिंग में कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है। दे आर नॉट एबल टू वॉक इंडिपेंडेंटली कॉन्फिडेंटली। और साथ ही में यूजुअली सच पेशेंट्स दे यूजुअली अवॉइड वॉकिंग इन डार्क, बिकॉज डार्कनेस होती है तो उसमें उनके जो फीट के ग्राउंड ग्राउंड सेंसेशंस हैं वो कम हो जाते हैं, तो दे कैन नॉट फील द ग्राउंड एंड इट इज़ यूजुअली डिफिकल्ट फॉर देम टू वॉक इन डार्कनेस। नेक्स्ट इज मसल वीकनेस। मसल वीकनेस में ये यूजुअली लेटर फेज ऑफ न्यूरोपैथी का सिम्टम है, जिसमें पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उनका फुट जो है बहुत ही हैवी हो गया, दे आर नॉट एबल टू लिफ्ट द फुट। और जब वो वॉक करते हैं तो दे हैव टू टेक अ हाई स्टेपेज गेट, तो उसकी वजह से अदरवाइज उनका फुट ड्रैग होता है एंड दे आर नॉट एबल टू डू अ हील टू टो पैटर्न। इंस्टेड उनका जो पहले टो लैंड होता है, फुट टो लैंड होता है ग्राउंड पे, फर्स्ट टो कांटेक्ट में आता है इंस्टेड ऑफ हील, और उसकी वजह से उनका जो पूरा गेट पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है एंड यूजुअली फुट दिस यूजुअली लीड्स टू फुट ड्रॉप। स्लीपर्स जो है वो भी फ्रिक्वेंटली निकल जाते हैं चलते चलते। नेक्स्ट इज क्रैम्प लाइक पेन। कभी कभी लेग क्रैम्प्स और काफ क्रैम्प्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि पेशेंट को नाइट में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है स्लीप के वक्त। यूजुअली दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी वाले पेशेंट्स में अक्सर ड्राई फीट देखे जाते हैं, जिसमें पेशेंट की जो स्किन है वो एकदम ड्राई हो जाती है, जिसको हम ट्रॉफिक चेंजेस कहते हैं। ट्रॉफिक चेंजेस में स्किन ड्राई हो जाती है, पाउडरी हो जाती है और बहुत ही रूखी सी हो जाती है एंड देयर आर क्रैक्स इन द फीट, जिसकी वजह से उनको अल्सर्स और दूसरी सारी प्रॉब्लम्स बहुत ही इजीली हो जाती हैं। यूजुअली जो स्किन है वो ड्राई इसलिए रहती है क्योंकि उसका जो ब्लड सप्लाई है वो लॉस हो गया है या डिस्टर्ब हो गया है, एंड सेकेंडली जो उसको स्वेटिंग है वो रिड्यूस हो गया है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज दैट देयर आर स्लो हीलिंग वुंड्स। जो वुंड्स होते हैं, अल्सर्स होते हैं, वो जल्दी हील नहीं होते हैं एंड एज अ रिजल्ट दे आर प्रोन टू इन्फेक्शंस। एंड द लास्ट वन इज ऑटोनॉमिक सिम्टम्स। ऑटोनॉमिक सिम्टम्स मतलब जो नर्व्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है वो भी अफेक्टेड होती है। फॉर एग्जाम्पल देर आर डाइजेस्टिव इश्यूज, bloating, indigestion, and there are also urinary bladder symptoms, and there are other symptoms such as dizziness while changing the positions. They are also as a result of autonomic system involvement. So we have learned about the various symptoms of diabetic neuropathy. So lastly, I would like to say that the pain is not the only symptom of neuropathy. There are various other symptoms and we should be aware of these things. We should be aware of the symptoms so that the neuropathy can be hold, and it can be, we can fight against neuropathy at an earlier phase when it is in the reversible stage. Thanks for watching. Thank you so much. Your support and your support always encourages me. Thanks for everything.